journal entries regarding specific transaction. And eighth point is related with purchase and sale of fixed assets. Purchase and sale of fixed assets. First of all, you have to keep in your mind that purchase word and sale word you have to write down only for the purchase and sale of goods. ठीक है, अब goods क्या है? Goods means the products or the things which you as a business organization you have purchased for reselling point of view. जो चीज़ें आपने business में रीसेल करने के point of view से purchase की हैं, all those products, all those things are related, are included in goods. Clear? But if you are purchasing some kind of assets, some kind of products or some kind of things for long lasting point of view, means suppose आपने अपने business को set up किया है and you have purchased some kind of furniture for the comfortness of your customer. आपने अपने customers को बैठाने के लिए फर्नीचर परचेज किया है, आपने कस्टमर के साथ बिलिंग करने के लिए, बिल उनको देने के लिए कंप्यूटर परचेज किया है. सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट फॉर रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू. These are long lasting things, and it will as a business organization, business keep these type of things for long time period. Means for the use of business organization these things are purchased. ऐसी चीज़ें जो बिजनेस में यूज करने के लिए परचेज की जाती है, ना कि सेल करने के लिए, वो चीज़ें आपकी फिक्स्ड एसेट्स में ही यूज होंगी. सपोज स्कूल है आपका, सो स्कूल जो है वो प्रोस्पेक्ट्स परचेज करता है, प्रिंट करवाता है आपको, एप्लीकेशन फॉर्म्स आपसे फिल करवाता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स फिल करवाए हैं, तो ये सब चीज़ें रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, मीन्स आपको देने के लिए. बट जो डेस्क अवेलेबल है, स्मार्ट क्लास बोर्ड अवेलेबल हैं आपके लिए, लेक्चर स्टैंड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, रूम के फैंस हैं, ट्यूब्स हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग थिंग्स हैं, इनको हम फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में लेंगे. क्लियर? सो परचेज and sale of fixed assets, you have to write down with that asset specified name. Means अगर आपने कंप्यूटर परचेज किया है तो आप उस एसेट के नेम से ही एंट्री करोगे. You have to write down computer account in debit side. But if you are dealing in some kind of products, means the products which you have purchased for resale point of view, for that product you have to write down the purchase word, and if you are selling the same, then you have to write down the sale word. But if the goods are in fixed nature, means not for resale point of view, आपने business में ही use करने के लिए assets purchase की हैं, then you have to write down that specified asset with their own name. अपने उसी के name से लिखने. अगर आप furniture purchase कर रहे हो अपने कस्टमर के लिए, then you have to write down furniture account. अगर आपने कंप्यूटर परचेज किया है बिलिंग के लिए, then you have to write down computer account. Clear? So all these are fixed assets, and according to real account rule, debit what comes in and credit what goes out, you have to write down, because these assets are in comes in form in business organization, so you have to write down in debit side. If you are paying for that assets in cash, मतलब अगर आप इसको परचेज करने के लिए इस एसेट को कैश पेमेंट कर रहे हो, then you have to write down to cash, because cash is also involved in real account, and according to real account, debit what comes in and credit what goes out. So this type of cash is in goes out form, so you have to write down in credit side. If you are paying by a check, then you have to write down bank account. Why? Because bank is related with personal account, and according to personal account rule, debit the receiver and credit the giver. Then who is the giver of that check? आपको वो check किसने दिया है? बैंक ने. क्लियर? बैंक से पेमेंट जा रही है, तो वो पेमेंट कौन कर रहा है? बैंक. So according to that personal account rule, you have to credit bank account if you are paying by check. But suppose that type of asset is purchased on credit, आपने कोई पेमेंट नहीं किया, ना कैश में ना बैंक में, then that person becomes your creditor. That person become your creditors, and he or she at that company or individual has right to collect or to claim a lump sum amount from your side. वो आपसे मांग सकता है. उस फिक्स्ड एसेट्स की परचेज किया आपने उससे, तो उस पर्सन का नेम आपने क्रेडिट में डाल देना, बिकॉज दैट person becomes your creditor. You have to apply personal accounts rule,
and the rule is debit the receiver and credit the giver. So who is the giver of that asset? That person is the giver. ठीक है, आपने उसको पेमेंट नहीं की है, आपने उसको पेमेंट करनी है, तो आपको वो चीज़ें कौन दे रहा है, वो एसेट कौन दे रहा है? दैट पर्सन इज द गिवर. सो if you are not paying in cash or bank form, then you have to write down that person or that company or that firm's account in credit side, because that person, firm and company becomes your creditor. Clear? On the purchase of this fixed asset, you have to make this journal entry. Suppose that type of asset is sold out, then अगर आप उसी assets को sale कर देते हो, then the journal entry is little bit different, because in this condition a lump sum amount of cash or bank is received by you. क्लियर? या तो आपके पास पैसा आएगा या आपके बैंक में पैसा जाएगा. सो सपोज कैश फॉर्म में आ रहा है, इन दैट कंडीशन रियल अकाउंट्स रूल यू हैव टू अप्लाई. डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश इज इन, कम्स इन, सो यू हैव टू डेबिट. सपोज यू आर रिसीविंग अ चेक फ्रॉम सेलिंग पार्टी, आपने अपनी उसी फर्नीचर को सेल कर दिया है, ठीक है, और उस पार्टी ने आपको सेल करने के बदले में अमाउंट की पेमेंट चेक से की है. So check is a personal account. Check is related with the personal account. So according to personal account rule, you have to write down debit the receiver and credit the giver. So that check is deposited by you in the bank. अगर आप उस check को बैंक में डिपॉजिट करवाते हो, so that bank is the receiver of that amount. बैंक उस check को रिसीव कर रहा है, उस amount को रिसीव कर रहा है. So according to that rule, you have to debit bank. So journal entry will be cash account debit or bank account debit. Clear? अब ये fixed assets जा रही हैं. So fixed assets in is in goes out form. According to real accounts rule, you have to write down fixed assets in credit side. Clear? So simple journal entry क्या होगी? If you are receiving cash, then cash account debit or bank account debit to fixed assets. This is a simple journal entry. But suppose if you are selling that fixed assets on profit or on loss, in that condition you have to add some amount of loss or some amount of profit in debit or credit side. Suppose we are considering one example. Suppose you as a business organization, you are having fixed assets. Suppose building is there and the book value होती है जो आपकी books में enter है. Means suppose आपने 10 years back building purchase की थी और वो building आपने अपनी balance sheet में show करनी होती है, assets सारी balance sheet में जाती हैं. So according to your balance sheet, the book value of building is 2 lakh. Clear? And after depreciation, means after all adjustment, the book value of a building is 2 lakh and you are selling the same building with the amount of 250. अगर आप उसी building को 2,50,000 में बेच रहे हो, then you are gaining ₹50,000. तब आपको 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है. क्लियर? सो profit is related with nominal account. So according to nominal accounts rule, debit the expenses and losses and credit the income and gains. So you have to write down in credit side, इसी entry में ही आप add कर दोगे to gain और profit, जो मर्जी लिख लो, gain और profit on sale of fixed asset. क्लियर? सपोज आपको कैश कितना मिल रहा है? 2,50,000. टोटल उसने 2,50,000 की पेमेंट करनी है. सेलिंग अमाउंट इज 2,50,000. सपोज इसमें भी हम अगर डिवीजन कर दे, वो ये कहे कि मैं आपको 1 लाख कैश में दे रहा हूँ, ठीक है, और 1,50,000 में आपको चेक से दूंगा. क्लियर? सो इस कंडीशन में आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? फिर आपको कैश भी राइट करना पड़ेगा, बैंक भी राइट करना पड़ेगा. यू हैव टू एंटर 1 लाख इन कैश, 1,50,000 in bank, and total amount of fixed asset is your, according to your books, fixed assets amount is 2 lakh. Okay, so according to your books, the amount of fixed asset is, आपने कहा ना, book value of fixed asset, book value of building is 2 lakh and you are selling the same building at the rate of 2,50,000 and the amount is received in
1 lakh in cash and 1,50,000 in check form. So according to your books, the value of building is 2 lakh. So you have to write down in fixed assets account the original value which is shown by your बैलेंस शीट. जो आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू शो की हुई है, आप सिर्फ वही शो कर सकते हो जब आप उसको राइट ऑफ कर रहे हो, जब आपके पास से फिक्स्ड एसेट्स जा रही हैं. फिक्स्ड एसेट्स को क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज दैट फिक्स्ड एसेट इज इन गोज आउट फॉर्म. अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट्स रूल, डेबिट what comes in and credit what goes out. So this is in goes out form. जा रही हैं fixed assets, building जा रही है, then you have to write down building here and with the amount of book value जो आपकी बैलेंस शीट में दी हुई है. 1 lakh you are receiving in cash form, 1,50,000 in check form, and total 2 lakhs fixed asset is in goes out form. Clear? But you are earning rupees 50,000 in profit. ठीक है, आप एज अ प्रॉफिट इस पे 50,000 रुपीज गेन कर रहे हो. सपोज यही एसेट आपने 1,50,000 में सेल की होती, यही एसेट आपने 1,50,000 में सेल की होती, तो इस जर्नल एंट्री की बजाय आपकी जर्नल एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट. सपोज ये 150 है, सो यू आर रिसीविंग 1 lakh in cash and 50,000 in check. So cash account debit with 1 lakh, bank account debit with 50,000, and your fixed asset means building is in goes out form and the book value of building is 1,50,000. Clear? Sorry, building's book value is 2 lakh. So the amount of building is 2 lakh and you are facing loss on sale of fixed asset with the amount of 50,000. ठीक है, बिल्डिंग कितने की थी? 2 लाख की. कैश आया आपके पास 1,50,000, आपका बैंक से चेक आया 1.5 लाख में बिकी है वो, 50,000 का लॉस हुआ. सो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट्स रूल, यू हैव टू डेबिट ऑल लॉसेस एंड ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस इन डेबिट साइड. So you have to write down 50,000 amount in debit side. Clear? Is there any problem in these two entries by anyone? Is it clear for you all? ओके, चलो इसी एंट्री को ही हम थोड़ा और ले लेते हैं. सपोज द सेम बिल्डिंग having book value same 2 lakh and sold on credit. Clear? So no cash is received by you, no check is received by you, only fixed asset is in goes out form, and that one party, and you can say one individual, one firm or one company is there, and that company, firm or individual is receiving or purchasing that type of fixed asset. ठीक है, एक पार्टी होगी जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज कर रही है, जिस फिक्स्ड एसेट को आप सेल कर रहे हो. क्लियर? आपके पास कोई कैश नहीं आ रहा, बैंक में भी कोई चेक नहीं आ रहा. ठीक है, तो उस कंडीशन में जर्नल एंट्री क्या होगी? सपोज हरी एंड कंपनी इज द परचेजर ऑफ दैट बिल्डिंग हैविंग द अमाउंट ऑफ 2 lakh. सो हरी एंड कंपनी becomes your debtor. Hurry and company debit, टू फिक्स्ड एसेट इज देयर. क्लियर? अगर वो 2 लाख की फिक्स्ड एसेट्स को 2 लाख में ही ले लेती है, सो नो प्रॉफिट इज देयर, नो लॉस इज देयर. So there is no need to write down profit or loss entry. Clear? If that company is purchasing, uh, means if that company is paying any plus amount regarding that fixed asset, so that amount is treated as your profit. If that company is paying any less amount, means as compared to book value, if you are receiving any amount which is less than book value, then that less amount is treated as a loss for you. क्लियर? अगर मान लो ये 2 लाख की बिल्डिंग को 2 लाख में ही परचेज कर लेते हैं और पेमेंट अभी नहीं की है, तो ये पर्सन और ये कंपनी और ये फॉर्म, ठीक है, उसके अकाउंट को आप डेबिट करोगे अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट्स रूल. And personal accounts rule is there, debit the receiver and credit the giver. So who is the receiver of that fixed asset? Messrs Hari and company is the receiver of that fixed asset. So you have to write down in debit side. Fixed asset is in goes out form, you have to write down in credit side. If you are facing any type of profit, then you have to write down in credit side. To profit on sale of fixed asset, to profit on sale of fixed asset,
If you are facing any type of loss, then you have to write down in debit side, loss on sale of fixed asset. क्लियर, एक एंट्री होगी आपकी या लॉस की होगी या प्रॉफिट की होगी. सो दिस इज द होल अबाउट परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. अब इन्हीं एंट्रीज को उन्होंने कंबाइंड फॉर्म में आपकी बुक में दिया हुआ है. इफ यू आर रिसीविंग कैश, देन यू हैव टू राइट डाउन कैश. इफ यू आर रिसीविंग अ चेक, देन यू हैव टू राइट डाउन बैंक अकाउंट डेबिट. क्लियर. If you are not receiving any type of amount, then purchaser account you have to debit, means high end company's account. Clear. That company becomes your debtor. If you are facing any type of loss, then you have to write down loss on sale of fixed asset. Fixed asset is in goes out form, you have to write down in credit side. If you are gaining any amount, you are obtaining any type of profit on sale of fixed asset, then you have to write down in credit according to the nominal accounts rule. So this is the compound entry of whole transaction. आपको अपने transaction को देखना है, चेकआउट करना है, and according to your transaction you have to make your own entry. कैश में आ रही है, then there is no need to write down this one or this one. ठीक है. अगर लॉस हो रहा है, then you have to write down only loss. No need to write down gain on sale of fixed asset. Clear? Any problem regarding this concept by anyone? Any problem regarding this transaction? Okay, then come to the next one. Next one is installation, or you can say expenditure on installation of machinery एंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. क्या होता है, सपोज आपकी एक बिल्डिंग, आपके पास एक बिल्डिंग है एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस के पास एक बिल्डिंग है एंड वी आर कंस्ट्रक्टिंग द फर्स्ट फ्लोर ऑन दैट बिल्डिंग. ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे बिल्डिंग है और आप उसी बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर बना रहे हो. क्लियर. सो दैट टाइप ऑफ बिल्डिंग, that type of building expenses are related with capital expenditure. देखो हमने स्टार्टिंग में कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिटेल में किया था, मैं फिर भी आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ. Capital expenditure means that type of expenditure which increase the you can say the amount of profit of business organization. ऐसे खर्चे जिसको करने से आपके बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज मिल जाएगा, आपके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा. दैट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर कैपिटल टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर. एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स जो रूटीन एक्सपेंडिचर है विच आर हेल्पफुल टू मेंटेन योर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो आपके प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है. सपोज आपके पास एक बिल्डिंग है, उसमें 5 रूम्स बने हुए हैं, आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, उसकी वाइट वॉश करवा रहे हो आप, तो वो वाइट वॉश इसलिए हो रही है कि वो रेंट जो है वो कंटिन्यू रहे. सो दैट टाइप ऑफ एक्सपेंस इज योर रेवेन्यू टाइप ऑफ एक्सपेंस. तो आप क्या लिखोगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट. ठीक है. और अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, टू कैश अकाउंट. But if you are constructing first floor on that building and you are constructing 5 new room regarding to increase your rental income, अगर आप अपनी rental income को बढ़ाने के लिए उसी बिल्डिंग पे 5 रूम्स और बना रहे हो कि 5 रूम्स को और रेंट पे दे देंगे. क्लियर. तो उस कंडीशन में वो जो एक्सपेंस है, वो जो फर्स्ट फ्लोर को बनाने का खर्चा है, दैट इज इंक्लूडेड इन बिल्डिंग अकाउंट, नॉट इन रिपेयर अकाउंट. क्लियर. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अगर आप उसी बिल्डिंग पे 5 रूम और बना रहे हो, ठीक है, तो उस पे जितनी भी लेबर का खर्चा है, सीमेंट का खर्चा है, मटेरियल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, आयरन मटेरियल जो आप लगा रहे हो उसके एक्सपेंसेस हैं, each and everything which you are included, which you require to construct that 5 rooms are included in capital expenditure. And according to capital expenditure rule, you have to write down that type of expense in that particular asset. कौन सी asset है आपकी, कौन सी asset increase हो रही है, building. So all types of expenses are debited in building account. ठीक है, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको आने वाले टाइम पीरियड में मिलेगा. उस 5 रूम के ऊपर और बनने से आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. अब वही बिल्डिंग जो पहले ग्राउंड फ्लोर होने पे जो है 20 लाख में सेल हो रही थी, वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर होने से मे बी 40 लाख में सेल हो जाएगी. क्लियर. तो आपकी ऐसे खर्चे आपकी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल you have to write down these types of expenses, these types of capital expenditure in that particular assets account, not in revenue type of expenses. मतलब अगर आपने वाइट वॉश करवाया तो आपको बिल्डिंग में नहीं लिखना,
तब आप प्रिपेयर अकाउंट में लिखोगे, क्योंकि वो आपके प्रॉफिट को मेंटेन करने का खर्चा है। ठीक है, आपको वो 5 रूम्स की ग्राउंड फ्लोर वाले की रेंटल इनकम मिलती रहे, आपने उसकी हल्की फुल्की मेंटेनेंस करवाई है, रेनोवेट करवाया उसको, उसकी आपने वाइट वॉश करवाई है, क्लियर। तो वो एक्सपेंस आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है, आपके प्रॉफिट को मेंटेन रखने के लिए, रेंटल इनकम को मेंटेन रखने के लिए। सो यू हैव टू राइट डाउन इन रेवेन्यू अकाउंट। मीन्स अगर आपने वाइट वॉश करवाई है, देन यू हैव टू राइट डाउन इन वाइट वॉश अकाउंट डेबिट, और यू कैन से रेनोवेट अकाउंट डेबिट, और यू कैन राइट डाउन रिपेयर अकाउंट डेबिट। ठीक है, आप कुछ भी उसमें जो भी जिस वे में आपने किया है एक्सपेंस वो राइट करोगे। बट इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग 5 more rooms, then all types of expenses are related with the increase of your profit, and you are getting the profit of that type of expense in near about future, so you have to write down in building account। ठीक है, ऐसे ही मान लो एक साइकिल शेड बना लिया, ठीक है, तो साइकिल शेड आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। सो ऑल एक्सपेंसेस which you have incurred in on the construction of cycle shed, you have to write down in building account। आप लेबर अकाउंट को डेबिट नहीं करोगे, आप सीमेंट अकाउंट को डेबिट नहीं करोगे, आप रिपेयर अकाउंट को डेबिट नहीं करोगे, आप सिर्फ बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करोगे। द टोटल अमाउंट यू हैव टू राइट डाउन इन दिस अकाउंट। जो जितना भी खर्चा हुआ है वो आप इसमें डेबिट कर दोगे। सपोज आपने एक्सपेंसेस किए हैं, so you have to write down building account debit। Suppose in cash form you have to make that type of expense, then you have to write down cash. If you are paying that type of expenses through a check, then you have to write down bank account। Otherwise, if you are doing that type of expense for the maintenance of business, then all types of expenses are included in that particular head, like repairs account, maintenance account, white wash account, वो आपने write करना है to cash or bank account, whichever you have, whichever in means in which you have paid that amount। Clear? In this concept, anyone have any problem? No. Okay. So next one is miscellaneous expenditure। मिसलेनियस और यू कैन से सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम एक पर्टिकुलर हेड में नहीं लिख सकते, क्योंकि हम जितने हेड बनाएंगे ना उतने ही आपको लेज़र में अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं। सो जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, मटेरियल टाइप ऑफ अमाउंट जिसमें यूज़ होता है निग्लिजिबल 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 100 रुपीज़, सो यू हैव टू राइट डाउन इन दैट पर्टिकुलर हेड, दैट इज मिसलेनियस। मीन्स एक्स्ट्रा, मीन्स जिसमें सारे छोटे मोटे खर्चे इन्वॉल्व हो। So miscellaneous, or you can write down sundry expenses account debit to cash account if you are paying in cash, otherwise you can write down to bank if you are paying in check form। क्लियर। अब ये एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं? सपोज आपने जो है कुछ पार्सल सेंड किए हैं और एंड यू आर पेइंग कोरियर एक्सपेंसेस, इफ यू हैव परचेज्ड सम काइंड ऑफ पोस्टेज मटेरियल। क्लियर, आपने पोस्ट ऑफिस से कुछ मटेरियल कुछ आपने लेटर्स राइट करने होते हैं अपने डेटर्स को, वो मटेरियल, कुछ स्टैम्प ड्यूटीज़, टिकट्स आपने लिए हैं, कुछ नोटरी के लिए लीगल पेपर्स आपने परचेज किए हैं, कन्वेंस के चार्जेस हैं, आने जाने का खर्चा हो गया है। ठीक है, तो वो सब एक्सपेंसेस, या मान लो आपके पास कोई कस्टमर आता है, आप उसके लिए जो एक्सपेंसेस करते हो, रिफ्रेशमेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, सो ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, इनके लिए क्या होगा, देखो ये बहुत कम अमाउंट के होते हैं और मे बी 1 और 2 और 3 और 4 टाइम ही आप करते हो। क्लियर। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अलग अलग हेड बनाने की बजाय, क्योंकि जितने आप अलग हेड बनाओगे उतना आपका लेजर अकाउंट लेंथी हो जाएगा, सो उस कंडीशन में हम एक हेड बना लेते हैं मिसलेनियस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस हेड, और इसमें एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं कि कन्वेंस, पोस्टेज, रिफ्रेशमेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस जो हैं, पेटी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, छोटे मोटे एक्सपेंसेस, यू हैव टू राइट डाउन इन दिस head। So according to nominal accounts rule, you have to write down expenses in debit side, sundry expenses or miscellaneous expenses are debit to cash or to check form or to bank form। Clear? Any problem? Any problem regarding these three types of entries? First is purchase and sale of fixed assets. Second one is expenses on capital, means capital type of expenditure, and the next one is miscellaneous expenditure। Any problem? Okay, come to the next one।
Okay, come to the next one, that is bank transactions. So for bank transactions, you have to keep in your mind 2 or 3 points. But before starting these points, we have to know about बैंक transactions. बैंक transactions की ज़रूरत क्यों है? Clear? Suppose you are starting, you have commenced your business, and for means your business, or individually we are also having any 1 or 2 accounts in a particular bank, because sometimes our debtors wants to pay their amount directly to our account. होता है ना, अभी अभी फी के लिए क्या होता है कि इंडिविजुअली नहीं जा सकते, सपोज वो जो स्ट्रीट है वो सील की हुई है, वहाँ कोई ऐसा केस आ गया है, या सपोज आपके पास टाइम नहीं है, देन वी आर प्रोवाइडिंग यू वन ऑनलाइन लिंक, है ना, कि आप ये इसी लिंक से जो है हमारे डायरेक्ट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दीजिए। सो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसके लिए बैंक अकाउंट एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास होना ज़रूरी है। सपोज किसी डेटर ने डायरेक्टली पेमेंट करवा दी, सपोज हमें किसी को चेक पे करना है, हम हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पहले बैंक में जाएं, फिर वहाँ से कैश विड्रॉ करें और फिर एक सामने वाले पर्सन को पेमेंट करें। इससे बेटर है हमारे पास चेक बुक है, we have to write down the amount which we want to pay to second party, and then we have to send that check to that party. So कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें इजी रहता है बैंक के थ्रू करने के लिए, कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो इजी होता है बैंक के थ्रू आने के लिए। क्लियर? तो इन ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक अकाउंट एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास होना ज़रूरी है। ओके, अब बैंक में अगर अकाउंट है तो बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट भी पे करेगा, बैंक कुछ चार्जेस भी ले सकता है अगर आपने एटीएम फैसिलिटी या अदर फैसिलिटीज ली हुई हैं। ठीक है, बैंक आपको पासबुक देगा जिसमें जो है बैंक आपकी तरफ से एज एन एजेंसी भी वर्क करता है, बैंक आपकी तरफ से आपकी पेमेंट्स करवा सकता है। सपोज आपने अपने किसी इंश्योरेंस प्रीमियम को पे करना है, ठीक है, तो आपने अगर बैंक को अथॉरिटी दी हुई है तो बैंक आपके वो जो अमाउंट्स हैं वो डिपॉजिट करवा सकता है आपके इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में। और भी बहुत से ऐसे ट्रांजेक्शन है जो बैंक आपके लिए टाइम टू टाइम करते हैं। आप एफडीज बैंक में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नेम से राइट कर सकते हो, एफडीज के अमाउंट को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, एफडी से करंट अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। So बहुत सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं, अकॉर्डिंग टू योर बुक 18 ट्रांजेक्शन्स आर देयर, सो वी विल डिस्कस ओनली 6 टुडे, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर 6 और 7 में भी जितनी हो पाएंगी, क्योंकि टाइम ओवर हो गया, 2 o'clock के बाद क्लास लेनी नहीं है हमें। सो वी विल डिस्कस द सेम one by one. First of all, you have to keep in your mind, if bank account's debit balance is given to you, then debit balance means your business firm having that amount as a bank balance. Means that amount is deposited in bank. Suppose 20,000 is there, and one transaction is there, 20,000 bank account debit. It means you are having, as a business organization, you are having 20,000 in your bank account. Clear? 20,000 bank balance is there in with the name of that business organization. But if you are having bank accounts credit balance, then credit means that amount is withdrawn from bank by business organization. Suppose इसमें भी यही 30,000 credit balance is given to you, so it means you are liable to pay, as a business organization you are liable to pay that 30,000 amount to bank. वो आपने बैंक से निकलवा रखा है। क्रेडिट बैलेंस मीन्स, देखो बैंक अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, सो पर्सनल अकाउंट मीन्स डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो इफ डेबिट बैलेंस इज देयर मीन्स बैंक इज द रिसीवर ऑफ 20,000, मीन्स बैंक आपकी तरफ से 20,000 रुपीज़ को रिसीव कर रहा है, मीन्स आपका बैंक में 20,000 रुपीज़ है, सेव है। So debit the receiver and credit the giver. So if bank's credit balance is given to you, means bank is the giver of 30,000 amount to you, means आपको बैंक ने 30,000 का अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, and you are liable to pay rupees 30,000 to bank. ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, and you have to apply personal accounts rule on bank. Clear? So come to the next first entry regarding bank transaction. So very first is cash deposited for opening an account. Cash deposited for opening an account means you have opened one account in bank and cash is received by the bank. आप क्या करोगे, आपने बैंक में एक अकाउंट खोला, इट मीन्स यू आर पेइंग अ लमसम अमाउंट बैंक। जीरो बैलेंस पे खोलते हो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप नॉर्मल अकाउंट खोलते हो तो उसके लिए क्या होगा, आपको एक अमाउंट बैंक में पे करना पड़ेगा, एंड इन दैट कंडीशन बैंक इज द रिसीवर ऑफ दैट अमाउंट। 1,000 सपोज आपने दिया है, सो बैंक इज द रिसीवर ऑफ दैट अमाउंट, सो debit the receiver and credit the giver, personal account rule is applicable here,
So you have to debit bank account and your cash balance is reduced in this transaction. आपकी जो कैश बैलेंस है, कैश का अमाउंट है वो बैंक में जा रहा है, तो आपके पास कैश बैलेंस रिड्यूस हो रहा है अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट रूल. डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट. So this is in goes out form, you have to write down in credit side. In the same form, cash withdrawn is there. Cash withdrawn means cash withdrawn from bank. आपने बैंक से पैसा निकलवा लिया. Cash withdrawn from bank. So you are receiving that amount of cash. So cash is in comes in form regarding business organization. So according to real account rule, you have to debit cash. And who is the giver of that cash? Bank. So on bank you have to apply personal account rule. According to that personal account rule, debit the receiver and credit the giver. So giver is the bank. So you have to credit that bank account. Clear? In both entries, any problem? Come to the next. Next is cash withdrawn from bank for personal use. Personal use means drawing. ठीक है, आपने बैंक में से बिजनेस के पैसे को निकलवा लिया, लेकिन आपने अपने पर्सनल यूज के लिए निकलवाया है, बिजनेस में वो पैसा यूज नहीं किया. सो दैट अमाउंट इज ट्रीटेड एज योर ड्रॉइंग. अगर बिजनेस के ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए वो पैसा यूज किया है, सो ड्रॉइंग इज देयर. एंड ड्रॉइंग मीन्स ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड, क्योंकि आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक अलग चीज़ है, अलग सेपरेट एंटाइटी है, और बिजनेसमैन एक सेपरेट एंटाइटी है. और अगर आप बिजनेस के पैसे को अपने पर्सनल चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हो, दैन बिजनेस जो है वो कभी भी आपसे वो पैसा ले सकता है. सो दिस अमाउंट इज ट्रीटेड एज एन एसेट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो अकॉर्डिंग टू दैट रूल यू हैव टू डेबिट ड्रॉइंग अकाउंट. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट एंड यू आर विड्रॉइंग फ्रॉम बैंक. So bank balance is reduced, and you can say that according to personal account rule, who is the giver of that amount? The bank is the giver. So you have to write down in credit side. Next one is पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर. सपोज एक मिस्टर राकेश हैं, आपने उनको पेमेंट की है और वो चेक से किया, आपने उनको चेक दे दिया, ठीक है, और आपने उनको बोला कि ये अमाउंट आप हमारे बैंक से जाके विड्रॉ कर लीजिए. सो टू मेन एस्पेक्ट्स आर देयर. फर्स्ट वन इज राकेश जो उस चेक को रिसीव कर रहा है, और सेकेंडली आपने क्योंकि चेक दिया है, सो मेन एस्पेक्ट इज चेक, और यू कैन से बैंक. तो टू एस्पेक्ट्स आपके बैंक और राकेश रहेंगे. बैंक पे आपने कौन सा रूल अप्लाई करना है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. सो जो बैंक है वो क्या है? गिवर है, वो अमाउंट दे रहा है राकेश को. सो यू हैव राइट डाउन इन क्रेडिट साइड टू बैंक अकाउंट, एंड ऑन राकेश you have to apply personal account. So debit the receiver and credit the giver. Rakesh is the receiver of that check, so you have to write down in debit side Rakesh. So your entry is Rakesh to bank account. Next one is पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर से विकास. देखो ड्राफ्ट और चेक थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है, डिटेल में नहीं करेंगे हम, ये भी एक पेमेंट का ही वे है. आप ये देख लीजिए, हम बिजनेस स्टडीज में जब बैंकिंग चैप्टर आएगा तब उसमें डिटेल में करवाएंगे आपको. सो इफ यू आर पेइंग अ लमसम अमाउंट टू अ क्रेडिटर बाय अ चेक. सपोज आप विकास को एक चेक दे रहे हो पेमेंट के लिए, पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर, ठीक है. यहाँ क्या था? पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर, ठीक है. दोनों में डिफरेंस क्या है? ओनली द वर्ड ऑफ ड्राफ्ट और चेक, ठीक है. तो जो ड्राफ्ट होता है उस कंडीशन में जो कुछ चार्जेस हैं वो अप्लाई होते हैं, बैंक कुछ चार्जेस लेता है. सो सेम एंट्री रहेगी, वही राकेश की जगह विकास का नेम आ जाएगा, विकास टू बैंक हो जाएगा, बट सम चार्जेस आर देयर रिगार्डिंग बैंक चार्जेस आर देयर, एंड दीज बैंक चार्जेस आर treated as an expense, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट्स रूल यू हैव टू डेबिट दैट बैंक चार्जेस. आपने पेमेंट की है एक क्रेडिटर को और आपके बैंक चार्जेस लगे हैं. मान लो आपने उसको 50,000 की पेमेंट करनी थी, ठीक है, और बैंक ने कहा कि ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करोगे तो आपके 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे. क्लियर? सो थ्रू बैंक यू आर पेइंग 50,100. 50,000 is received by Vikas, and bank charges is there, and bank charges rupees 100 is also there. So that expense you have to write down in debit side. Next one is पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय चेक. ये आपने डेटर क्रेडिटर को पेमेंट की थी,
ठीक है। और यहाँ पे आप मान लो कोई और खर्चा पे कर रहे हो, लाइक वेजेस पे कर रहे हो तो वेजेस अकाउंट टू बैंक हो जाएगा, रेंट पे कर रहे हो देन रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये एक्सपेंस है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे एंड दैट पार्टी मींस बैंक इज द गिवर, सो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट यू हैव टू क्रेडिट बैंक अकाउंट। इन द सेम फॉर्म चार्जेस पेड और चार्ज्ड बाय बैंक मींस बैंक ने कुछ चार्जेस लिए हैं आपसे, चार्जेस पेड, हमने चार्जेस पे किए हैं एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और चार्ज्ड बाय बैंक या बैंक ने हमसे कुछ चार्जेस जो है वो चार्ज किए हैं। सो दैट चार्जेस आर treated as an expense, so bank charges you have to debit, and bank is the means through your bank account that type of charges are excluding। मीन्स सपोज आपके पास आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज पड़े हुए हैं, ठीक है, और आपने कुछ पेमेंट्स की हैं, ड्राफ्ट दिए हैं, या कोई किसी भी और एटीएम के रिगार्डिंग आपके कुछ चार्जेस जो है वो बैंक ने लेने हैं, तो बैंक आपसे वो अमाउंट मांगता नहीं है, बैंक क्या करता है आपके बैलेंस में से ही डिडक्ट कर लेता है। क्लियर, सो उस कंडीशन में भी आपका बैंक बैलेंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सपोज जो 50,000 रुपीज पड़े हैं, सपोज बैंक ने अपने चार्जेस के 500 रुपीज लेने हैं, सो ये एक्सपेंस है आपके लिए, यू हैव टू राइट डाउन इन डेबिट साइड बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट विद 500 रुपीज, और 500 से ही आपका बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। अब आपके अकाउंट में 50,000 नहीं है, बल्कि 50,000 माइनस 500 इज इक्वल टू 49,500 रह गए। तो ये एंट्री जो है वो 500 से हो जाएगी। इट मीन्स योर बैंक बैलेंस इज रिड्यूस्ड विद द अमाउंट ऑफ 500। क्लियर, चेक के ट्रांजेक्शन हैं 8th 9th एंड 10th, ये चेक वाले हम बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक इजी फॉर्म में करवा दूंगी एक टेबल ड्रॉ करके। तो बाकी आपने यहाँ तक 7 तक करना है, और ये इसकी क्लोजिंग एंट्री रह गई है, और ये 6-7 एंट्रीज ये रह गई हैं, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मे बी आपका मंडे को ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, so you have to try to solve back exercise questions, and first of all you have to try to solve illustrations, examples। पहले examples करके देखना, ठीक है, रफ नोटबुक पे कर लेना, चाहे रफली करके देख लेना, बट आपको हर एक ट्रांजेक्शन्स का कंसेप्ट क्लियर हो कि इस एंट्री को डेबिट क्यों किया है और क्रेडिट क्यों किया है, रट्टे नहीं लगाने। क्लियर, एंड देन यू हैव टू ट्राई बैक एक्सरसाइज। अगर आपके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं अच्छे से, सारा क्लियर है, सब समझ में आ गया है, देन यू हैव टू ट्राई बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसको मार्क करो, सर्किल करो, और वो क्वेश्चन आप यहाँ अपना उसका स्क्रीनशॉट लेके चाहे मुझे सेंड कर दो, या क्लास में आप वो क्वेश्चन जो है वो हम लोग जो है डिस्कस कर सकते हैं। सो नियर अबाउट 40 to 45 मिनट्स क्लास हो गई है आपकी, ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, और जो रह गया है एक टॉपिक और है आपका, और हाफ टॉपिक ये है, मे बी हम मंडे तक कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को। तो आप मंडे को अपनी प्रॉब्लम्स ले आना, और ये जो थोड़ा सा रह गया है वो भी हम कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम है आज के टॉपिक में किसी को? ओके, क्लियर, न्यू स्टूडेंट इज देयर, जगमीत, जगमीत सिद्धू के नेम से कौन है? जसनूर है? यस, जशन, ओके जशन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, समझ में आ गया आपको? ओके जशन, आपको थोड़ा सा ना बैक वाला करना पड़ेगा, साथ साथ बैक वाला भी करते रहना, ठीक है। आप टाइम टू टाइम मुझे रिमाइंड करवाते रहो, क्योंकि देखो बहुत से नए स्टूडेंट्स आते रहते हैं 2 और 3 डेज के बाद ही, तो स्टार्टिंग में तो हम उनको स्टार्टिंग में वर्क जो है वो सेंड कर देते हैं। क्लियर, जैसे ही आपको लगता है ना आपको वो टॉपिक क्लियर हो गया है, तो आप मुझे रिमाइंड करवा देना, मैं आपको नेक्स्ट डे वाइज जो भी हमने किया है अब तक वो रिकॉर्डेड लेक्चर की फॉर्म में आपको सेंड कर दूंगी। मैं इनके लिए भी ट्राई कर रही हूँ, जो ये लेक्चर्स आपके ऑनलाइन लग रहे हैं, कि इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको यूट्यूब के थ्रू सेंड कर दूँ, लेकिन अभी उससे थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, कन्वर्जन प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, तो देखते हैं अभी, मे बी 1 और 2 डेज में मैं ट्राई करूँगी, संडे को थोड़ा फ्री टाइम होता है, तो उस टाइम में मैं आपको सारे के सारे सेंड करने की कोशिश करूँगी, जो क्लासेस में जो ये क्लास के थ्रू हमारे हो गए हैं, मीन्स जिन स्टूडेंट्स ने नहीं अटेंड किया है इन फ्यूचर उनके लिए थोड़ा, या न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहे। ओके देन, नो प्रॉब्लम। ओके ओके रजय, ओके जशन, yes, any problem regarding today's lecture?
Okay, then you have to do all sums except these 1.5 topic. Okay, now you can leave.